इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे स्टॉक्स की जो कि ईवी के सेगमेंट से कनेक्टेड है। द स्टॉक हैज रिसेंटली सोल्ड 8% और काफी हद तक एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पे अगर ब्रेकआउट आया तो एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं बात कर रही हूँ ग्रीव्स कॉटन की, जो कि एक सब्सिडरी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड GEML, टेक्स अ मेजर लीप इन ईवी स्पेस। अगर हम बात करें कि GML has filed a DRHP, draft red herring prospects with SEBI to raise 1,000 crores. Plan includes new equity issuance plus a sale of 18 crores 93,9800 to 200 existing shares. अगर Q2 ऑफ ईयर 25 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, तो इनका रेवेन्यू जो है 705 करोड़ का है, विच इज अप 10% Q on Q। नेट लॉस की बात करें तो नेट लॉस भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 14 करोड़ फ्रॉम 375 करोड़। ईवी मार्केट बूम की बात करें तो थ्री व्हीलर्स सेल्स अप बाय 41% इन ईयर 24, driven by BS6 norms and rural demand. CNG rules dominates with 63% market share, followed by diesel and electric. E-commerce growth boost demand for cargo, EVs, etc. अगर हम चल के एक बार इनके फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज इन अ मोर इलैबोरेट वे। सो अगर इनके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें, दे आर इन engines की बात करें तो 61% of their revenue has come from engines. Manufactures diesel, petrol, CNG engines, power genset, and trading of power trillers, etc. It offers non-auto engines ranging from 1.5 HP to 700 HP of various applications. Electric mobility की बात करें तो manufactures E2W and E3W through the sustainability GEMPL brands include Ampere, Greaves, Ultra Limited. Cable control levers की बात करें तो manufactures control levers, cable pedals and operators. अदर्स की बात करें तो 7% रेवेन्यू यहाँ से आया, इंक्लूड्स ग्रीव्स केयर एंड आफ्टर मार्केट स्पेयर बिजनेस, ऑल्सो प्रोवाइड्स रिटेल व्हीकल financing and engineering services to OEMs. So अगर बात करें तो company is a leader in India's 3W engine market. Ampere is ranked 5th in electric mobility with market share of about 2.8%. और अगर हम बात करते हैं कि इनके distribution network की and manufacturing facilities, the company has 8 factories across India. Its manufacturing site at Ranipet has an annual production capacity of 5 lakh e-scooters. Distribution network की बात करें, the company has a distribution network of 9,000 plus retail outlets, 200 plus distributors, 20,000 plus mechanics and 700 plus stores. और प्रोडक्ट लॉन्च की बात करें तो ईयर 24 में इन्होंने ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अनाउंस किया था और लॉन्च किया था। द इलेक्ट्रिक 3W पैसेंजर व्हीकल ग्रीव्स अल्ट्रा सिटी, द न्यू प्रोडक्ट नेक्सस इन द E2W सेगमेंट, एटसेट्रा। अब बात करते हैं कंपनी की market cap है 5,757 crores, ROC is 3.72 and ROE is about 1.62, and company's is almost debt free. Company's working capital requirement has gone down from 38.7 to 12 days. But अगर हम stocks की बात करें तो it's trading 4.24 times its book value. Company has a low return on equity and earnings engaged about 0.99 crores of other income. अगर इनकी सेल्स की बात करें तो सेल्स इंक्रीज हो रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कभी नेगेटिव था उससे बढ़ के अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हुआ है और थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ है चल बिकॉज द टैक्सेस हैव रियली गॉन अप, तो उनके नेट प्रॉफिट्स आर नेगेटिव फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। ईपीएस की बात करें तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है, बहुत अच्छे पॉजिटिव वो नहीं है, बट आई बिलीव दिस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, सो वी हैव टू कीप दैट लेवरेज. There'll be a time when this industry will become profitable, and then you will see that the all losses will convert into profit. So overall the company looks fine. We will just study what is happening in the price. Greaves Cotton, here is Greaves Cotton. आप देख सकते हैं कि there was a consolidation breakout very recently. Here the consolidation breakout happened, and अगर आप इसको थोड़े longer time frame पे देखते हैं, जैसे let's say week monthly week time frame पे देखते हैं, तो the stock stands on its lifetime high. The stock stands its lifetime high. मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टॉक अगर अपनी lifetime high को ब्रेक करता है तो 10% का मूव आपको जरूर दिखाई देगा। तो अगर ये 262 पे है तो आपको 300, 350, 360 ये मूव सारे आते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप इसमें इवन 500 का मूव, 400 का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी
केयरफुल व्हेन यू आर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो पहली चीज जो मैंने आपको बोली है कि इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, काफी समय कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। आप देखिए ये एक ऐसी रेंज है जो बार बार टच करता है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, और अब इसने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर। ये कंसोलिडेशन जोन के बाहर ब्रेकआउट दिया है, अब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये मैंने मंथली चार्ट आपके लिए लगा रखा है। तो अगर ये स्टॉक 265 के ऊपर जाता है तब आपको इसमें 500 के टारगेट्स आई वुड से आते हुए दिखाई देंगे। हैव अ लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव अपीयर्ड, 1 2 3 दिन लगातार अच्छे वॉल्यूम्स आए, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर चलने को तैयार है। एंड कीप इट ऑन रडार, एंड ये जो पास्ट बैरियर है दैट हैज टू बी ब्रोकन, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी अ गुड मूव अप। तो छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए, रिस्क मैनेज करिए, ट्रेड मैनेज करिए। मैं कई बार कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे घबराहट हो जाती है। मैंने मोबिलिटी दिया था, मोबीक्विक दिया था, किसी ने 1,27,000 रुपीज बनाए हैं इंट्राडे में। आई एम श्योर यू बॉट अ ह्यूज क्वांटिटी एंड यू इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इंट्राडे, बट वही बात है कि अगर सपोज नीचे चला जाता तो आप आके यहाँ पे मुझे बहुत गंदा गंदा बोलते कि, क्योंकि रिस्क तो मैनेज करना पड़ेगा ना, ये तो मार्केट है। अगर आप रिस्क नहीं मैनेज करोगे ना तो इट विल बिकम लाइक अ सट्टा मार्केट, इट विल बी लाइक अ गैम्बलिंग प्लेस कि आपको कोई कंट्रोल नहीं है। जो ट्रेडर होता है ना बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, इन्वेस्टर ट्रेडर बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बट एक गैम्बलर जो है ना वो कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता। वो बस प्रॉफिट देखता है, लॉस नहीं देखता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिखाई देता है, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट हो। लॉस जब होता है तो वो लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग पोजिशनल साइजिंग को थोड़ा कंट्रोल रखा, बिकॉज दैट विल गेट यू कंसिस्टेंसी इन द मार्केट, एंड आपका जो एक पैल्पिटेशन होता है ना कि आपका दिल धड़कने लगता है, वो भी कम हो जाएगा, एंड यू विल बी इन अ बेटर प्लेस, राइट। आई वुड से कंसिस्टेंसी गेट्स यू मच बेटर रिजल्ट्स देन एक दिन बहुत सारा और फिर अगले दिन उससे उतना ही लॉस हो गया। कितने लोग हो आप, लिखो कमेंट बॉक्स में कि प्रॉफिट में आने के बाद भी आपका ट्रेड नेगेटिव में क्लोज होता है। तो वो सब चीजों को कंट्रोल करो। आई एम श्योर यू विल ऑल डू वेल and keep learning about stock market, because that's the only way out. But I can only guarantee you one thing. This is what I always believe and say. There is huge money in this place which is called stock market. Only thing आपको पता होना चाहिए कि पैसे निकालने कैसे मार्केट से। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा मार्केट से पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं, then nobody will be able to stop you. All the best, keep learning, and आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला स्टेप लीजिए towards your learning journey, and I'm sure you will all rock in year 2025. Bye bye, take care.